it is limited to, when it is limited to ovaries only, it is called as PCOD. Okay, and जब ओवरीज से निकल के हमारे पास सिम्टम्स भी आने लगते हैं, फॉर एग्जांपल सिम्टम्स जैसे कि फेशियल हेयर्स आने लगते हैं विमेंस के, यानी कि चिन पे हेयर्स आते हैं, ओके, या थोड़ा अनवांटेड हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है, या आप बोल सकते हैं कि हेयर थिनिंग होता है या हेयर फॉल ज्यादा होता है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो जाती है. Okay, so these are the symptoms when they start occurring. So this is more dangerous. PCOS is more dangerous than PCOD. Okay, so we will start with the presentation, and we will start with presentation of 15 minutes, and after that we will have Q&A. So before starting the presentation, I forgot to introduce myself. I am Shruti Jain and I have logged in from Delhi. So today I'm senior coach with Wellsense community, and my story with Wellsense community I started as when I was a client with Wellsense community. I was also suffering from hypothyroidism issues. I was 10 kgs overweight. Okay. So with the help of Wellsense community only, I could able to reduce my thyroid medicine and finally give up on my medicines. And in this process, I have reduced 10 kgs of weight. So then right now I'm in front of you to give a talk about PCOD. So as we have discussed about PCOD and PCOD symptoms also, like thinning the hairs, unwanted hair growth, lot of facial hairs. Okay, insulin resistance is the reason, and the infertility problem in conceiving also is also the symptom of PCOD. Okay. And one of the major symptoms which we generally face is irregular periods. Okay, so we can move to the next slide, Vaibhav. So right now we are going to discuss now what is this PCOD. Okay, so as you see, women's reproductive organ is made up of fallopian tubes. Okay, fallopian tubes are attached with ovaries, and then it is attached with uterus, and finally vagina. Okay, so in every woman is born with millions of eggs in the ovaries. Okay, and every month 30 to 40 eggs released from the ovaries. Okay, out of those eggs, like if we call it as a egg, and if we call it as a premature, like egg बनने से पहले जो चीज होती है, okay, that is called as follicle. Out of all the follicles, only one egg is there which gets mature. Okay, and when it gets mature, it is then goes through the fallopian tube and finally comes to the uterus. Okay, when it comes to the uterus, what happens? If there is some sperm is available, then it will form a zygote. Okay, if there is no sperm available, then menstruation happens. And then this is the normal period cycle. What happens in PCOD? Out of those 30 to 40 eggs which is formed every month, okay, there is no single egg which got mature. Okay, no single egg gets mature, therefore no periods happens. Okay, what happens? All those follicles combine together and make a kind of cyst. Okay, so that cyst is very much dangerous for us. Why? We will learn this in next slide also. Okay, yeah, next slide, Vaibhav. So sometimes we see that it's okay, like we have a PCOS, then it's okay. If we are getting periods after 2 months, 3 months, 4 months, then what is an issue? Some people think like that. Okay, but होता क्या है, long term complications क्या है PCOD की? Long term complications है, first इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होने का भी डर रहता है पीसीओडी की वजह से. सेकंड, आपका बीपी बहुत फ्लक्चुएट होता है, जिसकी वजह से हाई बीपी रहने का आपको फियर रहता है. ओके, थर्ड इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपका रेगुलेट नहीं हो पाता है. फोर्थ, यूटेरिन कैंसर, जो आपका सिस्ट बनती है, दैट कैन कॉज सम यूटेरिन कैंसर आल्सो, दैट इज द मोस्ट डेंजरस part of PCOS. And after that, some women have to go for removal of uterus also. Okay, fifth is infertility. This is 1 in 3 women in this world. 1 in
third, like out of 3 women, out of those 3 women, 1 woman is facing a PCOD issue. So these days, issues of infertility is also very much spreading. Okay, that is also a reason of only PCOD. Okay, and the 6th is lipid abnormalities, means cholesterol up and down, like good cholesterol, bad cholesterol, all that becomes disturbs. Okay, so you can see in this diagram that normal ovary looks like this, and polycystic ovarian looks like there are lot of cysts in the ovaries. Okay, so there are 2 type of cyst also, like watery cyst and chocolatey cyst. When water is filled in the cyst, this is called watery cyst. When chocolate, like blood is filled in that cyst, it is called chocolate cyst. Okay, so we will come to the next slide. So, so as we have discussed, what are the symptoms of PCOS? In PCOS, the major symptom is irregular periods, okay, which women face at first. Okay, so you can answer like what is the most common symptoms faced by you. So this is a poll where everybody can participate. Okay, hair fall you are facing, irregular periods you are facing, weight gain you are facing, unwanted facial hairs you are facing, bloating or digestion issues you are facing. So many women have answered irregular periods. 25% of the women have answered irregular periods. So maximum answer is for weight gain. 50% women have answered weight gain. Correct. So anybody else want to answer? We are going to end the poll. Okay. So the thing is weight gain. Like most of you have said, weight gain is the major symptom faced by you. So why this PCO? Like in PCOD, it is always clear that stomach fat will increase. Okay. Why? Because you know fats are getting deposited on the ovaries. That's why PCOD is happening. Okay. So cysts are happening and ovaries are not functioning at their optimal efficiency. That's why PCOD is happening. So whenever we feel PCOD, there is lot of weight gain, and that is also on the belly fat. Belly fat is more. Okay, and we can say lower body fat is more in most of the women's. Okay. Yeah. So along with that, there are other issues which we face as a women in when we face PCOD problem, like infertility issue we face. Okay, fatigue issues जो हम बहुत ज्यादा फेस करते हैं. कुछ टाइम पहले उन्होंने मुझे कम कि उनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल इश्यूज हो रहे हैं. And then I ask about her menstruation cycle and everything. जब मैंने उनसे ये सब पूछा, उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इरेगुलर थी. तो कहीं ना कहीं जो उनका हेयर फॉल का इश्यू था वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड था, एंड वो पीसीओएस का एक सिम्टम था. तो मैंने जब उन्हें पीसीओएस का इनको रूट कॉज बताया, देन उसके लिए डाइट देना शुरू किया, तो शी हैज स्टार्टेड फीलिंग गुड. फर्स्ट उनके पीरियड सही हुए एंड देन उनको हेयर में भी इम्प्रूवमेंट मिला. ओके, सो कहीं ना कहीं हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा रूट कॉज क्या है. जैसे कि अगर मैं आपको बताती हूँ पीसीओएस के जो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द पीसीओएस. इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस में क्या होता है, जब भी आप हम लोग सुबह से खाना शुरू करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम बीच में कुछ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर कुछ खाते हैं, टी टाइम होता है, बिस्किट्स खाते हैं, फिर डिनर करते हैं. डिनर के बाद भी काफी लोग हम में से मिल्क लेते हैं, या कुछ लोग हेल्दी ईटिंग की वजह से कुछ सोचते हैं पपाया खा के सोते हैं. ओके, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस, जब भी हम कुछ खाते हैं तो बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है. ओके, तो पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते हैं. तो इंसुलिन बहुत अच्छा हार्मोन है. इंसुलिन का काम क्या है, एनर्जी को सेल्स में डिपॉजिट करना. अब जब हम लगातार खाते जा रहे हैं, पैनक्रियाज लेकिन इंसुलिन रिलीज करते जा रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, अभी सेल्स को तो एनर्जी नहीं चाहिए. सेल्स कहते हैं आई एम फुल ऑफ एनर्जी. देन अभी इंसुलिन क्या करता है,
जो भी एनर्जी है उसको फैट सेल में कन्वर्ट करता है, तो इंसुलिनिक फैट स्टोरेज हार्मोन भी है, ठीक है। अभी हमें इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, जब सेल्स जो है और एनर्जी लेने से मना कर देती है, तो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस इस चीज को हम बोलते हैं, जिसकी वजह से विमेन्स में पीसीओडी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। एंड फर्दर अगर हमने इसको टेक केयर नहीं किया तो टाइप 2 डायबिटीज, एंड फर्दर अगर हमने इसको बहुत सालों तक टेक केयर नहीं किया तो टाइप 1 डायबिटीज में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस हम इसे बोलते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस को खत्म करने के लिए हमें अपने खान पीन में किस टाइम पे खाना है, क्या खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं पिल इंड्यूस पीसीओएस की तरफ। पिल इंड्यूस पीसीओएस में मतलब कि जैसे काफी विमेन्स होती हैं जो पीरियड्स पेन के टाइम पे कुछ मेडिसिन लेती हैं, या कुछ या फिर मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं आता तो मेडिसिन लेती हैं, जो 21 डेज का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कोर्स रहता है सजेस्टेड बाय डॉक्टर। तो वो एक ट्रेडिशनल मेथड है पीसीओएस को ट्रीट करने का, बट दैट कैन आल्सो कॉज पीसीओएस। ओके, अनदर थिंग जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं दैट कैन आल्सो कॉज लॉट ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। ओके, जिसकी वजह से भी एक पिल इंड्यूस पीसीओएस जिसे हम बोलते हैं वो हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि हमें किस तरीके का पीसीओएस है, वो हम आगे बताएंगे कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। अगेन द इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस मींस देयर इज सम इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। इन्फ्लेमेशन का मार्कर होता है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ओके, व्हेनेवर द इन्फ्लेमेशन इज हाई इन द बॉडी and if there is some PCOS, then definitely we need to take care of our food also, कि हमें किस तरीके का एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स लेना है। अच्छा, तो आप सोच रहे हैं इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जब हमें कुछ स्ट्रेस होता है, ओके, जब हम मेंटली अगर हमें कुछ लगता है कि हमें कुछ स्ट्रेस है, दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रेस। सेम वे हमारी बॉडी में कुछ इंटरनल स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, that is called as inflammation in the body. ओके, इन्फ्लेमेशन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, आउटसाइड फूड खाना, फास्ट फूड खाना, दैट कैन आल्सो कॉज इन्फ्लेमेशन। एंड रिसेंटली अगर आपको बहुत ज्यादा फीवर, खांसी, जुकाम अगर ये सब भी होके गया है तो दैट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन इन सम ऑर्गन्स, इन सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। ओके, so for this we have to we will find the solution in next slides. Okay, so हमें देखना है कि इन सारी पीसीओएस के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। yes, so next is hidden PCOS. Hidden PCOS means for example आपका menstruation जो है after 45 days है, okay, sometimes it is 2 months है, sometimes it is normal 28 days period cycle. So this is hidden PCOS. And why this is happening? This is happening because of because maybe you are eating food, good food at some time, but you are not able to eat good quality, good nutrition food sometime because you are traveling. Okay, you are traveling, lot of traveling you are doing, like आप फ्लाइट में बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो, आप एवरी नाउ एंड देन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपका शेड्यूल फिक्स नहीं है, देन इट मे कॉज हिडन पीसीओएस। okay, but hidden PCOS we can find the solution and we will discuss the solution for all these PCOS in next slide. Okay, yes. So अभी हम जैसे कि बात करते हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि हमें कौन सा पीसीओएस है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो भी हम ये सेशन ले रहे हैं इसका हमें आपको ये अवेयर करना है, वी वांट टू मेक यू अवेयर दैट व्हाट इज पीसीओडी, ओके, व्हाट काइंड ऑफ पीसीओडी इज देयर एंड what is the solution that exists currently and what is the solution that Wellsense can provide. Okay, अभी जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन है पीसीओडी का आप सभी को पता ही होगा कन्वेंशनल ट्रीटमेंट क्या है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स अगर आप जाते हैं तो वो हार्मोनल पिल्स आपको सजेस्ट करते हैं, ठीक है, हार्मोनल थेरेपी जिसे बोलते हैं। अगर आपका एंड्रोजन हार्मोन वो हार्मोन जो कि आपका जो फीमेल बॉडी में दोनों हार्मोन होता है, मेल हार्मोन भी फीमेल हार्मोन्स भी। ओके,
जब फीमेल बॉडी में मेल हार्मोन्स ज्यादा डोमिनेट हो जाते हैं तो उस वजह से हमारे जो पीरियड्स है वो भी कम हो जाते हैं। ओके, अभी डॉक्टर्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, उसको रिड्यूस करने के लिए आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की पिल देते हैं सो दैट उसका लेवल कम हो जाए, दूसरे का लेवल बढ़ जाए। ओके, एक ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, अगर हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस है तो उसके लिए डॉक्टर्स हमें कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग्स देते हैं, जैसे कि मेटमॉर्फिन दे सकते हैं, ग्लूकाफेस दे सकते हैं। ठीक है, सेम वे विद एंटी एंड्रोजन ड्रग्स, जो मैंने अभी बताया कि अगर एंड्रोजन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हो जाता है तो उसको कम करने के लिए, दूसरा हार्मोन को बढ़ाने के लिए वो पिल्स देते हैं। एंड द फोर्थ वन इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है 21 डेज का जो कोर्स रहता है उसमें वही आपको हार्मोनल पिल्स दी जाती है सो दैट आफ्टर दैट course of pills you will get the periods. Okay, now what is the solution provided by Wilson? So first of all जो भी हम solution provide करते हैं वो 4 चीजों के ऊपर बेस है, रेगुलर एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट रेस्ट। तो हम इस चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें डायग्नोसिस कैसे करना है पीसीओएस के लिए। कुछ विमेन्स में हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है जिसकी वजह से उनको पीरियड्स या तो प्रॉपर ड्यूरेशन की नहीं आते या फिर प्रॉपर टाइम पे भी नहीं आते हैं। ओके, तो हमें हीमोग्लोबिन जानना बहुत जरूरी है। ओके, हीमोग्लोबिन का लेवल विमेन्स के लिए 12 to 14 रहता है और अगर इस रेंज में है तो बहुत अच्छा है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप बीटरूट खा सकते हैं, ओके, पोमेग्रेनेट खा सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन रिच फूड जो है आप उस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है HbA1c जो 3 मंथ्स का एवरेज ब्लड शुगर पैरामीटर रहता है जिससे हमें पता चलेगा कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। ओके, तो ये हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस तो नहीं है। अकॉर्डिंगली हम अपने फूड टाइमिंग्स को रेगुलेट कर सकते हैं। थर्ड इज लिपिड प्रोफाइल जो कि कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के बारे में बताता है कि हमारी बॉडी में गुड फैट, बैड फैट्स ये सब कैसे हैं। अकॉर्डिंगली हम जब न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हम अकॉर्डिंगली गुड फैट्स को इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, जैसे कि कोकोनट ऑयल, ओके, वॉलनट्स, omega-3 कैप्सूल्स आल्सो वी कैन इंक्लूड। Okay, next one is thyroid. TSH is like thyroid is very important for PCOD also. Like thyroid is again a hormone. Okay, so we should be knowing about our thyroid hormone like T3, T4 and TSH. Based on that, if thyroid is a root cause, then we have to work on that thyroid also. Okay, another thing is vitamin D. Like this is proven that deficiency of vitamin D can cause thyroid also and can cause some skin diseases also. And because of deficiency of vitamin D, like in 95% of Indians vitamin D की deficiency है। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। तो विटामिन डी लेने से, हम विटामिन डी का पता करने से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो पीसीओएस है वो इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस है, विटामिन डी एंड सीआरपी। ओके, कि हमारा जो पीसीओएस है किस तरीके का है। विटामिन डी का अगर वैल्यू हमारा अच्छा रहेगा तो हमें जल्दी से पीसीओएस या थायराइड जैसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है आपका बहुत ही मेजर है। ओके, B12 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन विटामिन। ओके, B12 जो है आपका डाइजेशन को भी अच्छा रखने में, यानी कि बी विटामिन जो है गट एंड ब्रेन इज डायरेक्टली रिलेटेड। अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं, देन आपके जो ब्रेन्स में हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट हार्मोन्स। तो हमें विटामिन B12 का भी पता होना बहुत जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। एंड द लास्ट वन सीआरपी जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि हमें बताता है इन्फ्लेमेशन के बारे में। ठीक है, अभी हम जो मेजर फैक्टर है जिसके सोल्यूशन क्या है, ठीक है, तो जैसे अभी हमने बताया कि फर्स्ट होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन में हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस, सारे पीसीओएस के लिए, इन्फ्लेमेटरी, इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओएस, सभी के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो आप बताइए क्या आप दिन में 7 to 8
7 से 8 डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा पाते हैं? मैं तो खुद भी नहीं खा पाती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग, सो मेरे पास भी टाइम नहीं है कि मैं 5 तरीके के डिफरेंट वेजिटेबल्स कुक कर पाऊँ एंड 2 डिफरेंट कलर्स की फ्रूट्स ले पाऊँ. ओके, generally we take 2 to 3 fruits and vegetables in a day. So as per WHO हमें जो है 7 to 8 different colors of fruits and vegetables खाना चाहिए to complete the requirement of the body. अगर हम वो नहीं खा पाते तो definitely we have to find the smart solution. Smart solution ये है जो हम provide करते हैं based on your blood test. We may recommend some multivitamin also, that is totally organic. ओके, अनदर थिंग इज प्रॉपर न्यूट्रिशन में जब हम बात करते हैं तो टाइमिंग्स की जरूर बात करते हैं. टाइमिंग्स मतलब जैसे आपका जो खान पीन है कंसिस्टेंटली सेम टाइम पे हो, सेम डे पे हो, मतलब एवरी डे सेम डे पे आप जैसे उठते हैं सुबह, सेम डे पे आप खाइए खाना, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी है सब कुछ आप सेम टाइम पे ही खाइए. ओके, बहुत ज्यादा टाइमिंग चेंज करने की वजह से हमारी बॉडी को भी नहीं पता चलता है कि हमें कौन सा हार्मोन अभी रिलीज करना है. ओके, नेक्स्ट जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट फास्टिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं. यहाँ पे इंटरमीडिएट फास्टिंग मींस फॉर एग्जांपल अगर आपने खाना 7 o'clock या 8 o'clock डिनर आपने कंप्लीट किया, उसके बाद हम आपको कहेंगे 12 to 14 आवर बाद आप अपना नेक्स्ट मील लीजिए. ओके, वाई? बिकॉज बॉडी को हील होने के लिए, बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए भी थोड़ा एनर्जी चाहिए. एंड जब हमें ऑलरेडी पीसीओएस है तो वी नीड 12 to 14 आवर्स ऑफ इंटरमीडिएट फास्टिंग एटलीस्ट. ओके, फास्टिंग करने से आपका जो बॉडी है, बॉडी विल हील इटसेल्फ, बॉडी विल हील योर बॉडी. ओके, क्योंकि बॉडी में वो कैपेसिटी अपने आप को हील करने की. नेक्स्ट है एडिक्वेट रेस्ट, जो साउंड स्लीप है 6 to 7 आवर्स, 6 to 8 आवर्स की, दैट इज द बेस्ट डिटॉक्स इन द वर्ल्ड. उसके अलावा कोई ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक नहीं है. अगर आप 6 से 8 घंटे बहुत अच्छे से सो पा रहे हैं तो आपकी उम्र भी घटेगी और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपकी कम होके खत्म भी हो जाएंगे. नेक्स्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना हमारे लिए, सबके लिए ही मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यू नो स्ट्रेस इज द मेजर कॉज. ओके, अगर हम स्ट्रेस को हटा के पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखते हैं देन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इनक्योरेबल है. तो पीसीओएस भी, इसको भी हम इजीली क्योर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ऑल्सो. तो एक्सरसाइज में जब हम बात करते हैं तो एक्टिविटी की बात करते हैं. 2 चीजें हैं, फिजिकली एक्टिव रहना, यानी कि हमें 3 से 4 घंटे में बैठना नहीं है कभी भी एक जगह पे. हर आधे घंटे 1 घंटे में कोशिश करो आप 2 से 3 मिनट या तो वॉक कर लो या खड़े हो जाओ. ओके, नेक्स्ट है एक्सरसाइज करना. एक्सरसाइज मींस 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन 7 डेज. तो आप अपने टाइम टेबल को अगर 4 दिन भी आप एक्सरसाइज करते हैं 150 मिनट्स, दैट इज आल्सो वेरी गुड. एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे जंपिंग करना, ओके, योगा, सूर्य नमस्कार करना, कार्डियो एक्सरसाइज करना. ओके, तो बहुत सारी एक्सरसाइज है जो हम आपको यहाँ पर बताएंगे. एंड जो हमारा मिरेकल मॉर्निंग सेशन रहता है उसमें भी हम योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जुम्बा डांस, ये सब करवाते हैं. ओके, तो आई होप आपको काफी यहाँ से नॉलेज पता चली होगी. एंड अभी हम लोग जो है क्वेश्चंस लेंगे. सो बैक टू द होस्ट. Yeah, so thank you Shruti for giving insights about the topic, and I know काफी सारे क्वेश्चन सवाल रहेंगे. तो इससे पहले हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पे जाए तो हम कुछ ऐसे पुरानी टेस्टिमनीज और एग्जांपल्स, केस स्टडीज आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में. एंड उसके बाद हम 1-on-1 क्वेश्चंस ले सकेंगे जो अभी आपके डाउट है. तो आई विल जस्ट शेयर माय screen and show some of the case studies with you. Just an example. Yeah, meanwhile, Shruti, you can engage with the audience. I'll just share. यस, सो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है, आप अपने क्वेश्चंस जो है आप रेडी रखिए. एंड डोंट थिंक
बहुत सारी विमेन्स को क्या होता है ना, फियर होता है। 2 से 3 दिन पहले एक विमेन मेरे पास थी, शी मतलब मेरे लिए तो बहुत लिटिल गर्ली है वो, शी इज ओनली 20 years old, बट शी वाज सेइंग कि मैम मुझे अनकंफर्टेबल लगता है ओपन में थोड़ा सा एक्सरसाइज करने में। मैंने उसे कुछ एक्सरसाइज सजेस्ट किया था करने के लिए, एंड शी टोल्ड मी कि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि हमें विमेन्स को ऐसा ही सिखाया जाता है। तो थोड़ा सा हमें अपना जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना है, एंड एक्सरसाइज करने से कभी घबराना नहीं है, एंड दूसरा अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है एक्सरसाइज करते हुए, जंपिंग करते हुए, या फिर मैं आपको और भी अगर एक्सरसाइज बताती हूँ, योगा आसन But बताती I हूँ, तो can हमें खुद को अनकंफर्टेबल नहीं फील करना है। ओके, सो लेट्स वॉच दिस टेस्टिमोनियल एंड वी विल डिस्कस। Yeah, so this testimony जो है, this is regarding one of our client जिन्होंने start किया था and within a span of 2 weeks, जैसे कि आप सभी ने अपने पोल में मेंशन किया था कि weight gain या fat gain is a major trouble जो भी PCOD के clients आते हैं। So just hear from her कि how did she feel in the first 2 weeks? but I can feel it कि मेरे कुछ लूज हुए हैं, कपड़ा से होता है ना, तो I think इंचेस कुछ लूज हुए हैं, but I don't have the measurement per se. I think वेट से ज्यादा इंचेस शायद फर्क पड़ा है। फिर बहुत चीजें मुझे जो डिफरेंस दिख रही है, मेरा ओवरऑल मेरे को लग रहा है स्ट्रेंथ बेटर ही हुआ है। जैसे मैं आपको बोल रही थी ना कि पहले मेरे को जो मेरा इशू था वो भी अब चला गया है। नाउ आई कैन मोर और लेस डू 5 एवरी डे। अरे वाह, नाइस नाइस। Yeah, so Shruti, you can continue. I'll share once more. Next. Yeah, so girls, मतलब you are a super woman. Okay, you are a super girl. So don't shy from anyone. Okay, many women shy from their own family members also, from the neighbors also. They don't play in the street like the boys of their neighbors play. So just first of all, this mentality, this thing is here. Okay, don't shy. Just live your life fully. Don't be stressful. Stress is the major cause of PCOD. Many women's 20-20-year-old women are not able to get the periods, and that too from last 1 year, 2 year, and they are facing lot of stress. So just don't feel stress. खेलो, कूदो, पढ़ो, एक्सरसाइज करो, ठीक है? तो स्ट्रेस जो है उसे लेकिन हटा दो लाइफ से। तो मेरा Correct. यही मैसेज है आपके लिए। Yeah, so this is the second case study. आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे on the left hand side. She is Hemlata. She was a housewife and a mother of 2 twins. She belongs to Visakhapatnam. And if I talk about for her case, like she had put on a lot of weight, right? As you can see on the left hand side. Okay, she is 72 kg, but like if you get the 60 kg, she seems totally different from left to right, right? And definitely मतलब whenever जब hormonal changes occur ना, तो it's not only about weight gain, like inside of you there are a lot of things which are happening. अगर आप देखोगे it's like maybe the sleeplessness, tiring feel करना, एकदम जान नहीं होना, back pain feel करना, and there are a lot of mood swings also happening. And कहीं ना कहीं when you start gaining weight, it reflects on a psychological part, like our mindset wise, and कहीं ना कहीं we become so socially भी हम थोड़ा सा कटने लगते हैं, we start avoiding people, right? And she was the mother of 2, so obviously there was a huge responsibility on her, right? And thankfully she got connected to one of our Wellsense coach, and after she started her journey, so she could able to lose आप जैसे देख भी पा रहे हो 12 किलो के around 12 kg she lost in just a span of 3 months. And अगर आप देखोगे she could able to reverse her thyroid also, because thyroid is also one of the you can say symptom once PCOD increases, right? And after 3 months she was very much active, rejuvenated, thyroid skin की values काफी कम down हुई, an improvement in vitamin D levels. So it was a full package. मतलब it's not like खाली weight gain या weight loss PCOD में हो रहा है, but it's like overall change. And similarly आप देखोगे this is also another case study, and she's the case study of Lakshmi. She was into conventional business,
and she was very much 94 kgs. and जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उनके बहुत सारे मतलब हेल्थ इश्यूज थे. शी वाज हैविंग बैक पेन एंड कई सारी बिजनेस एक्टिविटीज या फिर मतलब घर के जो रोजमर्रा के काम हैं, है ना, शी वाज आल्सो नॉट एबल टू डू. वो लेथर्जी फील करना, बैक पेन फील करना, right? And definitely after she started, so she could also able to lose roughly 5 kgs in a month, and you can see the change from left to right in her photo, right? So with this, like, I'll share last case study, which is of a woman, and she has shared her experience by herself. Okay, now, so she was suffering from, like, hormonal issues, and miscarriage also happened with her. So once she started working on this diet, so things started to change miraculously for her. So just a minute, I'll just play her video. We have a recording of her. Just give me a minute. Yeah, Shruti, you can introduce Sapna meanwhile. I'll just play her video. Yeah, so Sapna is a working woman in Delhi only. Okay. तो उनका प्रॉब्लम था कि उन्होंने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया हुआ था, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया था अपनी लाइफ में, एंड शी वाज होपलेस. उनको कोई होप नहीं थी कि अब कुछ हो सकता है, एंड उन्हें कंसीव भी नहीं हो रहा था. बहुत टाइम से वो कंसीव करने का ही मेन ट्रीटमेंट ले रही थी, एंड जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि मेरे को अगर जॉब में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो मैं जॉब भी छोड़ देती हूँ. शी लेफ्ट हर जॉब आल्सो फॉर दिस कंसीविंग थिंग. And after the diet, she was able to Last conceive. year, I had a miscarriage, and post that, I am having severe hormonal fluctuations, due to which I was not able to conceive. And I took a lot of allopathic medicines. I was continuously going to my gynecologist, allopathic gynecologist, since then. And in between, I also switched to homeopathic medicines. Also, though homeopathy medicines was good, but yes, जब मैंने वैभव को कांटेक्ट किया, वैभव ने मुझे श्रुति से मतलब कनेक्ट कराया, तब जो मेरा टेस्ट रिपोर्ट्स आया उसमें मेरी एलोपैथी मेडिसिन की वजह से बहुत ज्यादा ही हेल्थ जो थी वो बहुत डिटोरेट हो चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि मेरा लिवर बहुत वीक हो गया था और मेरे को स्ट्रेस बहुत रहता था, वर्क स्ट्रेस, और क्योंकि कंसीव नहीं होता था तो थोड़ा उसका भी मेरे को स्ट्रेस रहता था. तो श्रुति रियली हेल्प मी, although I had been a very bad at following 100%, but yes, she has always, like, after me, and have really taken care of my diet really well. और उसके बाद से डेफिनेटली मुझे जब मैंने डाइट फॉलो करना शुरू किया तो मेरा जो इस मंथ के जो मेरे पीरियड्स थे, they were very very less painful. I mean, it was zero, almost zero, and I was more happy, more energetic. मेरे energy levels भी ज़्यादा था, और with God's grace and with help of Shruti and Vaibhav, I have lost 3 kgs and 2 inches also. Though मैंने बहुत कम diet follow कर पाई थी, but yes, I am very happy. And thanks to Shruti, thanks to Vaibhav. Thank you so much, and I am hoping that मतलब ऐसा मुझे फील होता है कि मैं अंदर से बहुत एनर्जेटिक और बहुत हेल्दी फील करती हूँ. जो मेरी हेल्थ मतलब जो हैबिट्स है, मेरी हैबिट्स बहुत चेंज हो गई है. आई एम रेगुलरली टेकिंग वॉक, आई एम टेकिंग माय मील्स ऑन टाइम नाउ. एटलीस्ट द विंडो ऑफ माय ईटिंग हैबिट इज कंसिस्टेंट. चाहे मेरा टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मेरी जो ईटिंग विंडो है दैट इज नाउ कंसिस्टेंट. एंड जो मेरी एक क्रेविंग्स रहती थी शुगर के लिए, sweets के लिए especially, that has also cut down, and that has really helped me with my health transformation. And I'm hoping that I'll follow her diet soon, very strictly, so that I can 100% recover with my health and follow that regularly. Thank you. Yeah, so if we talk about the current situation, Sapna was able to conceive. Challenge, and post that, I am having severe hormonal fluctuations, due to which Yeah, so she was able to conceive also, and right now she's giving, like, she is having a baby around like 2.5, around 3 months. So anyways, like, now we will get to the Q&A part. So
लाइक जिन जिन लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो दे कैन जस्ट रेज देयर हैंड. अगर आप यू कैन सी ऑन द बॉटम साइड ऑन द रिएक्शन पैनल, यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रिएक्शन. तो आप उस पर क्लिक करके यू कैन जस्ट रेज योर हैंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप चैट में भी लिख सकते हो. वी विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम चैट ऑल्सो. Okay, yeah, Shruti, so we have received one question. Like, is it the diet only which will be helping, or like, do I need to do exercise also? Matlab, do I need to do gym workouts also? Because I don't have much time. Yeah, very good question. So definitely ये जो वेलसेंस का प्रोग्राम रहेगा वो आपका डाइट बेस्ड प्रोग्राम ही है. ओके, इट वॉन्ट रिक्वायर जिम वर्कआउट्स. अगर कुछ भी हम आपको देंगे तो दैट विल बी वेरी सिंपल, जैसे जो आप रेगुलर अपनी लाइफ में घर पे भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग आप कर सकते हैं खाना खाने के बाद. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो कोच है वो आपको कुछ बहुत सिंपल एक्सरसाइज बता सकते हैं जो आप बेड टाइम पे भी कर सकते हैं, यानी कि सोते टाइम भी कर सकते हैं. So this is mainly a diet program only. The next question is like, कितने टाइम में रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे? Okay, very nice question again. So definitely it is based on person, no? Like if it is about PCOD, like if a women is not getting periods from many years, then definitely it will take at least 4 months. Okay, if your problem is only recent problem, okay, जहाँ पे आपको अभी कुछ टाइम मतलब irregular है, 1 month, कभी 2 months में होता है, कभी 3 months में होता है, then definitely you will start getting results within 2 months. Okay, but within 1 month only you will start feeling good about your digestion, about your energy levels, about other problems like about hair issues, like those issues are there, you will start feeling good about them. But finally whatever the root cause is there, like PCOD and that, it will take some 2 to 4 months. Okay, okay. So do I need to continue my medical pills, or matlab, how does it work? Very nice question again. So about medical pills, definitely when you will come to the program, we won't give you any medical pill, and we will ask you to give up on your medical pill. जो भी आप अगर hormonal therapy अगर आप ले रहे हैं तो आप उसको अपना लाइफ से हटा सकते हैं. ओके, एंड the thing is यहाँ पे if you are coming for the weight loss and PCOD simultaneously, then in 1 month I would say you will be able to lose 3 to 4 kgs in a month. Okay, for hormonal issues weight loss is really slow. Otherwise we say 5 to 6 kgs of weight loss. Okay, but this may happen that if you are having some PCOD thyroid issue, then you can lose 3 to 4 kgs in a month. Okay, if that also happen, that is also very good. Okay, Okay, okay. So Shruti, one more question is coming. Like, what is the course of your fee? What is the fee of the whole program? so this is the star mark question for today. So this is the good news for all of you that we are not taking any consultation fee. मतलब डाइट बताने के लिए अभी हम कोई फी नहीं ले रहे हैं. डाइट को ट्रैक करने के लिए, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए अभी हम कोई फी नहीं ले रहे हैं. एंड दैट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम ओनली, बिकॉज नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल स्टार्ट. सो वेलसेंस कम्युनिटी में क्या नॉर्म्स आते हैं दैट वी ऑल्सो डोंट नो. Okay, it will start from the next financial year from 1st of April. So before COVID, we used to take rupees 2000 per month for the consultation part, like for tracking part, for diet tracking, for progress checking also. But abhi hum consultation fee, diet tracking fee is 0. So this is the golden opportunity that you have, all of you. So if you want to know how to start the things, whatever the blood test I have recommended in the slide, if you want to know again the blood test, which blood test you have suggested, you can ping me personally and you can ask the person who has invited you here in the seminar. Okay, so that person will recommend you right blood test for you, and as soon as you get those blood tests done, we can start. Okay, so the first step is to get that blood test done so that you can get registered here in the month of March only.
Okay. Okay. So I think this was the last question. So we don't have much questions left. So anybody, any more question? We otherwise will then call this off. Okay, so Shruti, what is your final message to all the people who have joined the message? One last bidding message which you would like to Yeah. give. So one last message is, guys, be happy always, be stress free always, and there is nothing which cannot, मतलब जो इनक्योर, मतलब आप जो ठीक नहीं किया जा सकता. With Wellsense, like intelligence, common sense. This is about Wellsense. We are talking about, यहाँ पे हम जो बात करते हैं Wellsense में, कि एक जो वेल रहने की जो आर्ट है, जो that is Wellsense. Okay, so with Wellsense you will be, आपको जो है बहुत सारी लर्निंग मिलेगी थ्रू द लाइफ, जो आपके साथ में रहेगी. हाउ टू ईट हेल्दी फूड, एंड क्या हेल्दी फूड है आपका, जो भी आपने आज जाना, एंड आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए क्या हेल्दी फूड है. अलोंग विद दैट आपको बहुत सारी और भी चीजें यहाँ पे हमारे साथ में मिलती रहेंगी. तो आप सभी के लिए एक ही मैसेज है, आप खुश रहिए, सबसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहिए. ओके, अगर आप हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे, तो देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस हार्मोन. Okay, so there will not be any disease in the body. If there is some disease, we can like overcome it. All right. So thank you, Shruti, once again for giving time and sharing all the insights of this particular subject. And I hope जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस सेशन से जरूर ग्रैब किया होगा. एंड इसके अलावा भी हमारे इस मंथ के सेशंस कंटिन्यू रहेंगे. And next week we would be having one diabetes awareness session, which is the most awaited session for this month. So अगर आपके फ्रेंड सर्कल में, नोन सर्कल में ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज की पिल्स ले रहे हैं, तो यू कैन गेट देम आउट ऑफ द पिल्स. तो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर joining this session. So we both of us from Wellsense community signing off, and good night. Have a great day. Thank you all of you for being such a great audience. Thank you.